Hi guys, good evening. All right, just attach this here. So I hope you guys are doing fine. Thank you so much for joining today, and let's just see if everything is fine, everything is clear. Because yeah, I was trying from the last 3 minutes to join, but there was some technical issue and I couldn't join on time. So let's see if it's now fine. Yes, it is. Okay. All right. Yeah. So, guys, today we are going to discuss a brand new chapter, which is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. The author of this chapter is Gordon Cook and Ellen East. Now, this chapter is very interesting. This chapter is interesting as well as important. Why? Because इसमें से बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड यू नीड टू रिमेंबर जनवरी इसको क्या हुआ इसको क्या हुआ इसको क्या हुआ. सो आपको सारे जो भी चीज़ें जब जब हुई थी वो सब याद रखना होता है एंड दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर इन डिटेल टुडे. जैसे कि हम हर बार करते हैं, समरी देखेंगे और चैप्टर को एक बार अच्छे से देख लेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. Let me just tell you, if you're not a Plus subscriber, you can go ahead and get yourself a Plus subscription. You can use my code SDC Live. You get to learn live from your home and unlimited access to everything. You get top educators and doubt solving sessions and test series and whatnot. And yes, you can also go ahead and choose iconic subscription. It's going to give you an edge over others because we are going to provide you a personal mentor, in iconic subscription, who's going to just constantly see if you are working well. So that's there are a lot of batches which are going to help you ace your academic career, and we have amazing test series going on every month. Brand new test series come. You can also become the part of Creative Corner, which is complimentary with CBSE category, and you can take Plus or Iconic, and it will all be complimentary for you. You can use my code as SDC Live to get 10% discount on your Plus subscription. You can use it for whatever. You can use it for Plus or Iconic for 11th or 12th or any category. So that's there, guys. Now let's begin today's class. Now I thought, why not create a kind of a template and have my video right there. So yeah, it's working out. I'll do it better next time. So I'm trying to make it more better. So let's see next time if we can do better. All right, so today's class is this. Now let's see the introduction of the lesson. Let me just open the highlight so that it's fine if we do anything. So yeah, so we have introduction of the lesson. Introduction of the lesson we are going to see. All right. Written by Gordon Cook and Ellen East, the story is about a 37-year-old businessman who is the narrator of the story. ये story एक 37-year-old businessman की है जो कि narrator हैं story के. He has a wife named Mary and two children, Jonathan aged 6 and Suzanne aged 7. He and his wife both dream of a voyage around the world on their ship Wave Walker, which is a 23-meter long, 30-ton wooden hulled beauty, just like that of a famous captain, James Cook. The whole family started sailing from Plymouth, England on July 1976. The initial phase of 3 year long journey was from Africa to Cape Town. It was pleasant while heading east along with two newly hired crewmen. Strong waves hit them, and their survival became a question. The story tells us about how they fought each day and survived till the end. Now you must be wondering, ma'am, what's this? Now let me just tell you. You remember, एक ऐसे questions आपसे पूछे जाते हैं. Is the title justifying? What do you understand from the story? What have you learned from story? And what's there in the story? And that kind of questions that come. Now in those kind of questions, you can use this.
यू कैन यूज दिस, और बस इतना सा लिखने से आप पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर लोगे, आप एग्जैजरेट भी नहीं करोगे, वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं होगी, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा हो जाएगा और टाइटल जस्टिफाई भी हो जाएगा. सो वो क्वेश्चन होते हैं ना टाइटल जस्टिफिकेशन वाले, यू कैन डू दैम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. Moving on, now we are going to study summary. So let's see summary of the entire this thing. Now why am I doing summary right here? Because there are some students जो जिन्होंने मेरे साथ स्पेशल पे एक बार और पढ़ेंगे, अभी और पढ़ रहे हैं. They don't want to go into the depth of the chapter because yes, I understand you guys have learned this with me for 4 times now. So yeah, so उनके लिए summary ताकि से वो आराम से इसे समझ सके और समझने के बाद वो जा सके. और जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो रुक सके. किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को. हम लोग चाहते हैं आप आराम से अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, एंड दैट्स द एंटायर पर्पस. ऑलराइट गाइस, the narrator and his wife, this is the summary guys for all those of you who have already studied this chapter but just want to revise. This is for you. If you want to study it further in detail with me, you can stay and we can study line by line from NCERT. The narrator and his wife plan a voyage around the world just like famous Captain James Cook. They have been preparing and perfecting their seafaring skills for past 16 years. They get a ship which is 23-meter 23-meter long and weighs 30 tons wooden hull named Wave Walker. They test it in the rough weather for months. तो अभी यहाँ पे नरेटर और उनकी वाइफ प्लान करते हैं एक बड़ा ही ब्यूटीफुल और बड़ा ही डेयरिंग वोयाज. वोयाज क्या होता है? वोयाज जो जर्नी होती है आपकी, यूजुअली सी के लिए यूज़ किया जाता है. सो वो एक ऐसा वोयाज प्लान करते हैं एंड दे वॉन्ट टू परफेक्ट देयर सी फेयरिंग स्किल्स. वो अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को परफेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से 16 सालों तक वो प्रैक्टिस करते रहते हैं एंड साथ ही साथ वो एक अच्छी शिप भी ले लेते हैं जो कि 23 मीटर लॉन्ग है, उसका वेट 30 टन है और उसका नाम है वेव वॉकर. सो वेव वॉकर उसका नाम है और उसे बहुत ज़्यादा रफ वेदर में वो टेस्ट करते रहते हैं सो दैट दे अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये कैसा है और क्या ये एकदम रफेस्ट सी में जो प्लान कर रहे हैं वहाँ चल जाएगा या नहीं. In July 1976, my dear students, this is very important for you. You need to remember the dates. You need to remember the time for this chapter. So yes, I know it's very irritating for you guys. I understand your problem, but you have to do this, बच्चास, क्योंकि ये चैप्टर में ऐसा ही होगा. क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 2 जनवरी को क्या हुआ था, 6 जनवरी को क्या हुआ था. अब यूं कि नहीं 6 जनवरी को ऐसा हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए. तो डेट याद रख लेना प्लीज. ओके, सो जुलाई 1976 दे ऑल स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड. तो जुलाई 1976 से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड से. दे सेल फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन विच वॉज क्वाइट अ प्लेजेंट जर्नी. वो अफ्रीका से केप टाउन की तरफ जाने लगते हैं और वो काफ़ी प्लेजेंटली वहाँ तक पहुँच जाते हैं. Before heading east, the narrator hired 2 crewmen. और ईस्ट जाने से पहले वो 2 क्रूमैन भी अपने साथ ले लेते हैं. तो मतलब जब वो जर्नी के लिए निकले थे वो कितने थे? 4. और जब वो जर्नी के लिए आगे जा रहे थे ईस्ट में, वो कितने हो गए? 6. क्यों? क्योंकि 2 क्रूमैन उनके साथ आ जाते हैं. अच्छा, 2 क्रूमैन का नाम भी याद कर लो मेरे बच्चों. क्या नाम है? लैरी विगिल, ओके, एंड हर्ब स्लेगर. सो लैरी विगिल एंड हर्ब स्लेगर टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन. अब वो क्यों लेके आते हैं अपने क्रूमैन को? क्योंकि वो सदर्न इंडियन ओशन को टैकल करना चाहते हैं. They encountered strong and alarming waves during the second day. उनके सामने बड़ी ही खतरनाक वेव्स आने लग जाती है. दूसरे दिन ही उन्हें इतनी ज़्यादा खतरनाक वेव्स दिखने लग जाती हैं. By December 25, they all managed to reach 35,000 kilometers east of Cape Town. 25 दिसंबर तक
वो 35,000 किलोमीटर्स ईस्ट के टूवर्ड्स जा चुके होते हैं. द फैमिली somehow manages to surpass the bad weather and celebrates Christmas together. वो कैसे जैसे मैनेज करते हैं बैड वेदर को, कैसे जैसे अपने दिमाग से निकालते हैं और क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. द वेदर चेंजेस फॉर द वर्स. अब वेदर चेंज होने लगता है और वेदर और ज़्यादा वर्स हो जाता है. जनवरी 2 को एक बहुत ही बड़ा वेव उन्हें हिट करता है. वो शिप को स्लो करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, बट इससे एज सच कुछ हो नहीं पाता. वो सारी चीज़ों को अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करें, वो सारी चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लाइफ लाइन्स हो, ऑयल स्किन्स हो, लाइफ जैकेट्स हो, सब कुछ. Later in the evening, a vertical and huge wave strikes the ship and narrator is thrown from the ship. और उसके बाद में बड़ा सा वेव आ जाता है और शिप उस वेव में से निकलने की कोशिश करती है और वो उससे भिड़ जाता है, जिसकी वजह से नरेटर का सर जो है वो एकदम व्हील पे जाके ऐसे टकरा जाता है एंड ही इज़ थ्रोन आउट ऑफ द शिप, और वो शिप से बाहर निकल जाते हैं. ही एक्सेप्ट्स हिज अप्रोचिंग डेथ एंड स्टार्ट लूजिंग कॉन्शियसनेस. और उन्हें लगता है अब तो मैं मर गया, अब तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा. एंड देन ही फॉल्स अनकॉन्शियस और वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं. ही सफ़र्स इंजरीज इन रिब्स एंड माउथ. उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरी होती है, दांत टूट जाते हैं और उनकी रिब्स टूट जाती है. उन्होंने गार्ड रेल कैसे जैसे लिया, कैसे जैसे वो शिप के मेन बूम तक गए. वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि प्लीज़ आप शिप का ख्याल रखिए, तब तक मैं देख के आता हूँ. वो देखते हैं कि क्रू मैन बड़ी मुश्किल से पानी को पंप करते रहते हैं, पानी को बाहर निकालते रहते हैं. सो दैट्स हैपनिंग. उसके बाद में वो अपने चिल्ड्रन के केबिन में जाते हैं तो पता चलता है उनकी डॉटर जो है उनको बहुत ज़ोर से सर पे लगी हुई है. और वो अभी फ़िलहाल ही इज़ लाइक आई नीड टू सेव माई फैमिली, आई हैव नो टाइम टू लुक एट सूज हेड और माई टीथ और माई रिब्स, आई नीड टू जस्ट डू दिस एट दिस टाइम. एंड दैट्स वाई ही डिसाइड्स कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, वट एवर इज़ डन डन, अभी फटाफट से मेरे को वो करना है. तो फटाफट से वो वाटर प्रूफिंग करना चालू करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी होल हुए होते हैं वो उनको सही करने की कोशिश करते हैं. अभी पंप्स जो होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं. पंप्स क्यों ख़राब होने लग जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर डेब्रिस जो होती है, मतलब इधर उधर की जो जितनी भी चीज़ें होती है वो फंस जाती है जाके, तो वो एक प्रॉब्लम होती है. उसके बाद उन्हें एक इलेक्ट्रिक पंप मिलता है, कैसे जैसे वो पंपिंग करते रहते हैं और पानी निकल जाता है. इसके बाद में उन्होंने जितने भी फ़ोन किए अथॉरिटीज़ को कि प्लीज़ हमारी मदद कर दो, प्लीज़ हमारी मदद कर दो, उनकी मदद करने कोई नहीं आता है, क्योंकि ऑब्वियसली उतने रफ़ एरिया में उनके अथॉरिटीज़ या कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता है. Sue, on the other hand, has now swollen black eye and a deep cut on her arm. और Sue और ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, और ज़्यादा उन्हें लग जाती है, उनकी कट भी आ जाता है हाथ पे. सो दैट ऑल्सो हैपन्स. मतलब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद कुछ 15 घंटे बाद सिचुएशन जाके कंट्रोल में आती है. इसके बाद में वाटर लेवल डेफिनेटली कंट्रोल हो जाता है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं अभी भी लीक होता है, ये चीज़ उन्हें महसूस होती है. शिप अभी बहुत बुरे शेप में चला जाता है और अभी उसका कंडीशन नहीं होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए. इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पास वाला जो आइलैंड है वहीं चले जाएं, विच इज़ एल एम्स्टर्डम. और वो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, तो उन्होंने सोचा मैं वहीं हम लोग चले जाते हैं. वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कैसे जैसे और पंपिंग करने की कोशिश करते हैं. बहुत दिनों बाद वो पहली मील अपनी खाते हैं, जो कि कुछ थोड़ी सी कॉर्न्ड बीफ और क्रैकर्स, कुछ बिस्किट्स उनको खाने को मिलते हैं, अदरवाइज़ वो भी नहीं मिलता है. अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद में फाइनली ऑन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5 वो उनको बोलते हैं, लाइक उनका जो बेटा है वो उनके पास आता है और वो पता है क्या बोलता है? पापा, हम लोगों को डर नहीं लगता अगर हमें आपके साथ, हम लोग सब साथ में हैं तो. अगर हम लोग सब साथ में हैं तो हम किसी से नहीं डरेंगे, हम लोग साथ में हैं तो फिर मरने से भी हमें कोई डर नहीं लगता. तो वो इस तरीके से इतनी बड़ी बात बोलते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत डिटर्मिनेशन फील होता है. उन्हें फील होता है कि मुझे मेरी फैमिली को बचाना है. आपको पता है पापा ना सुपर हीरो होते हैं. हमें ऐसा लगता है कि वट एवर दैट्स गोइंग टू हैपन नाउ, ही इज गोइंग टू सेव अस फ्रॉम दैट. Whatever that we are going to do, he's going to come, he's going to hug us, and he's going to save us from everything. And that's the very intent of children there. They're like, it's fine dad, अगर आप हमारे साथ हो, अगर ममा हमारे साथ है, we can do it all, हम लोग सब कर लेंगे. So वो इस तरीके से उन्हें बताते हैं. अच्छा, by the way, don't forget to take screenshots, okay? This is just the summary.
दिस इज जस्ट द समरी फॉर माई स्टूडेंट्स जो इसे 4 4 बार पढ़ चुके हैं। डिटेल वाले बच्चों बस अभी स्टार्ट कर रही हूँ, बस थोड़ी सी देर में। The same evening, the narrator and his wife sat together holding hands. वो लोग अपने उसी दिन बहुत बहुत मेहनत करी होती है उन्होंने, बहुत मेहनत, पूरी जी जान लगा देते हैं बच्चों को बचाने के लिए, कुछ नहीं हो पाता, हार मान जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के हाथ दोनों एक दूसरे पकड़ के, और वो सोचते रहते हैं कि अब हमें मरना है क्योंकि हमें कोई नहीं बचा सकता। तो जब वो ऐसा हो रहा होता है, अब सोचो एक फैमिली के हेड पे क्या गुजरती होगी जब उसे ऐसा फील होता है कि अब उसकी फैमिली को वो सेव नहीं कर पा रहा है। वो उतरते हैं, वो फाइनली वो सोचता है मुझे सारा कैलकुलेशंस करने हैं, वो सारे कैलकुलेशंस करते हैं एंड ही डिसाइड्स कि नहीं, हम लोग आइलैंड पे पहुंच जाएंगे एंड आइलैंड इज़ वेरी नियर। इसके बाद में वो लैरी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि 185 डिग्री आप ले लीजिए, व्हील को स्टर कर लीजिए एंड देन हम लोग 5 बजे तक आइलैंड पहुंच जाएंगे। इतना ज़्यादा थक जाते हैं वो, इतना ज़्यादा माइंड स्ट्रेनिंग होता है वो, कि वो सोने चले जाते हैं। वो बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, मैं तो सो रहा हूँ। वो सोने चले जाते हैं। जैसे ही वो उठते हैं उन्हें बड़ा बुरा लगता है क्योंकि 6 बज चुकी होती है और उन्हें लगता है कि आइलैंड तो चला गया है, और वो बड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं। इतने में उनका बेटा आता है और उन्हें बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड और बेस्ट कैप्टन बोलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे मुझे बेस्ट डैडी बेस्ट कैप्टन क्यों बोल रहे हैं, अभी हम लोग मरने वाले हैं और ये बच्चे भी ना। बट देन वो उनको बताते हैं कि हम लोगों ने एल एम्स्टर्डम फाइंड आउट कर लिया है, हम लोग आइलैंड पे पहुंच गए हैं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, आपने लिटरली, आप बेस्ट डैडी हो, आपने वो जो आइलैंड था वो ढूंढ लिया है, यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। सो ऐसे बोलते हैं और देन फाइनली उनका जो स्ट्रगल और हार्डवर्क होता है वो उन्हें बचा लेता है, वो लोग बच जाते हैं। एक इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर फैमिली साथ में रहती है तो कुछ भी हो सकता है। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल, कोई भी तरीके की स्ट्रगल हो, इफ़ योर फैमिली इज विथ यू, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। सो दैट्स द इंटायर दिस थिंग, दिस इज द समरी गाइस। थोड़ा थोड़ा याद करा दिया आपको कि क्या क्या हमने पढ़ा था, क्योंकि हमने जुलाई में पढ़ा था, फिर धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट हर महीने मैं आपको यही चैप्टर पढ़ाई जा रही हूँ। जब तक पढ़ाती रहूंगी, जब तक आपको एकदम से रट नहीं जाता और आप ऐसे नहीं बोलते मैम अब तो हो गया मैम बस। तो अभी जो मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनको एकदम से रटा हुआ है चैप्टर, उन्होंने थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, तो अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो, टाइम वेस्ट मत करना अपना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, मुझे सपोर्ट करने के लिए आ जाते हो। अभी फटाफट से उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है और वो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। इसमें बेटा मैं आपको एक एक एनसीईआरटी का लाइन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, सारे प्रॉब्लम्स आपके इधर से ही सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। ऑल राइट, सो एनसीईआरटी कर रहे हैं बच्चों हम लोग ये। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जॉन 6, Suzanne 7, and I sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time owning the seafaring skills in British waters. नरेटर जो कि हमारे यहाँ पे मिस्टर कुक है वो बताते हैं कि जुलाई 19, याद रखना, जुलाई 1976 में वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ मैरी, मेरा जो बेटा है जॉन और मेरी जो बेटी है सू, हम लोग सब एक हम लोग एक सेल पे जाते हैं प्लाई माउथ इंग्लैंड के। और हम लोगों को क्या करना होता है, हमें जो जेम्स कुक ने 200 साल पहले एक वोयाज किया होता है बड़ा ही डेंजरस सा, हमें बस वही कॉपी करना होता है। और बोला कि मैरी मैरी उनकी वाइफ है और वो खुद एक 37-year-old बिजनेसमैन है। बोला हमने हमेशा से ये कोशिश किया है कि हमें तो बस कुछ भी करके और ये करना है। और 16 साल हम पता नहीं क्या क्या कर सकते थे, हम कहाँ घूम के आ सकते थे, हम क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकते थे, हमने वो सारी लेजर एक्टिविटीज़ को हटा दिया। हमने अगर किसी चीज़ पे फोकस किया है तो हमारी सी फारिंग स्किल्स को अच्छा करने के लिए टफ से टफ वाटर में हम लोगों ने इसको ट्राई किया है। टफ से टफ वाटर में हमने कोशिश किया है कि हम देखें अगर हम कर पाएंगे तो। और इसीलिए उन्होंने अपना जो बोट है जो जिसका नाम है वेव वॉकर, जैसे इसका नाम स्पेकी है और ये आपको मेरे आई में दिख रही होगी, इसका नाम रिंकी है, दिस इज रिंग लाइट।
वैसे ही इनका एक बड़ा ही ब्यूटीफुल पार्ट है इनकी लाइफ का, जो है वेव वॉकर। तो वो जो उनकी बोट है जो कि 23 मीटर बड़ी है और 30 टन की है, बहुत ही प्रोफेशनली बिल्ड, बड़ी ही ब्यूटीफुल सी है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मंथ्स अपने लगाए हैं उसे टेस्ट करने के लिए कि वो रफेस्ट से रफेस्ट वाटर में चल जाएगी क्या। तो ये वो इंट्रोडक्शन देते हैं। अब मेरे बच्चों, आपको मेरे बिना भी ये करना पड़ सकता है ना, तो फटाफट से एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल गया है, मस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपकी समरी रेडी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 year 1,05,000 kilometer journey. Oh, okay. All right. नॉट टू डू, आई नॉट डू इट। सो बोला हमारा जो पहला लेग है हमारी प्लान जर्नी का, जो 3 साल की जर्नी है जिसमें 1,05,000 किलोमीटर की हमें जर्नी करनी है, उसका पहला जो लेग था, जो पहला टर्म था, काफ़ी अच्छा जा रहा था, काफ़ी अच्छा जा रहा था। हम लोग वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक पहुंच गए थे, तो सारी चीज़ें एकदम मस्त चल रही थी। बट बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाने से पहले वी टुक ऑन 2 crewmen। उन्होंने 2 crewmen को लिया उनकी हेल्प के लिए। नाम याद करोगे मेरे साथ में? अमेरिकन थे लैरी विगल, अमेरिकन लैरी विगल एंड विगल ऐसे बोलता है। स्विस थे हर्ब स्लेगर। सो अभी यहाँ पे अमेरिकन लैरी और स्विस थे हर्ब, जो कि उन्होंने अपने साथ में लिए ताकि से वो उन्हें वर्ल्ड की रफेस्ट सी जो है, द सदर्न इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन को पार करवाने में हेल्प कर दे। सो उन्होंने लैरी की और हर्ब की हेल्प लिया, बोला आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो उन्होंने 2 crewmen को अपने साथ लिया ताकि वो सदर्न इंडियन ओशन को एकदम मस्त तरीके से पास कर ले। ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, जब वो केप टाउन से बाहर निकले, दूसरा ही दिन था कि उन्हें बड़ी ही स्ट्रॉन्ग गेल्स देखने को मिली, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग गेल्स। बहुत वीक्स तक वो वैसे ही चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, उन हवाओं ने उन्होंने इतना टेंशन में नहीं रखा। बट द साइज ऑफ वेव वॉज अलार्मिंग। बोला गेल टेंशन नहीं था, गेल्स टेंशन नहीं थी, वेव्स की साइज टेंशन थी। वेव 15-15 मीटर तक आ रही थी, उनके मेन मास्ट तक उठने लगी थी। मेन मास्ट होता है ना सी का, जो शिप का, उसमें क्या होता है, एक ऐसे ऐसे एक डंडा होता है शिप में, और उसमें एकदम ऊपर से ना एक डंडे से एकदम ऐसे जिब होती है, या स्टॉर्म जिब होती है जो ऐसे लगी हुई होती है, वो ऊपर वाला जो होता है उसको मास्ट बोलते हैं। बोला उतनी ऊपर ऊपर तक वेव्स आ रही थी। उतनी ऊपर तक वेव्स आएगी तो पानी नेचुरली शिप में आएगा ही आएगा ना, कि भाई आपके पूरे शिप को कवर करने वाली वेव्स आएंगी तो पानी तो उसके अंदर आएगा ही आएगा। तो बोला मुझे बस वो टेंशन थी, मुझे ये टेंशन नहीं था कि हवाएं कैसे चल रही है, मुझे बस ये टेंशन था कि वेव्स बड़ी बुरी चल रही हैं। और वेव्स डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग थी, क्योंकि वेव्स जो थी वो मास्ट तक पहुंच गई थी। December 25 found us 3,500 kilometer east of Cape Town। बोला 25 दिसंबर तक हम लोग 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट तक पहुंच गए थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree। बोला इतने खराब वेदर के बावजूद हमारा हॉलीडे बहुत अच्छा गया। हमने क्रिसमस ट्री सजाया और न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। बोला क्रिसमस हमने बहुत अच्छा किया क्योंकि हॉलीडेज आर मेंट टू बी सेलिब्रेटेड, या सो दे वर लाइक वी सेलिब्रेटेड हॉलीडेज वेरी वेल। बट हमें लगा था कि चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। न्यू ईयर्स पे भी कोई चेंज नहीं आया। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। बट उन्हें ऐसा लग रहा था सब सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हर चीज़ बेटर होने वाली है, वेदर चेंज हो जाएगा। इट चेंज फॉर द वर्स। बोला चेंज हुआ बट और वर्स हो गया, और ज़्यादा खराब हो गया। सो इट चेंज फॉर द वर्स। वो खराब होने के लिए चेंज हो गया, और ज़्यादा वेदर खराब हो गया। जहाँ उन्हें लग रहा था कि वेदर तो चेंज होगा, बोला हाँ चेंज हुआ, पर और ज़्यादा खराब हो गया। At dawn on January 2, the waves were giant.
2 जनवरी को वेव्स, जायंट, बड़ी बड़ी वेव्स. वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स. मतलब वो अभी केवल एक छोटी सी स्टॉर्म जिब के साथ सेल कर रहे थे और उन्होंने 8 नॉट्स लगाई थी. देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ क्या होता है. इसका ना एक टर्मिनोलॉजी है. आई जस्ट शो यू द स्टॉर्म जिब ताकि से आपको कोई दिक्कत ना आए ना. 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ इमेज, ताकि ना आप थोड़े क्लैरिटी से इसको समझ सको. ये देखो, ये देखो, कैन यू सी इट. ये जो ऑरेंज कलर का फ्लैग शेप है ना, दिस इज द जिब. ये होती है जिब. अब इसको इसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है. आई एम रियली सॉरी, आई वॉज अबाउट टू अटैच अ पिक्चर हियर बट आई फॉरगॉट हियर. आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. आई कुड हैव अटैच द पिक्चर ओनली हियर बट देन आई डिसाइडेड ओके आप अपने ही तो हो, देख लो, इसमें देख लो. ठीक है. सो ये होती है हमारी जिब. अब ये जो जिब है, इसको, इससे क्या होता है, इससे कंट्रोल किया जाता है उसका पूरा जो मतलब मूवमेंट होता है ना शिप का, वो कंट्रोल करने के लिए होता है. अब उस पर आप नॉट्स लगा के उसको सही कर सकते हो. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous sea rolling towards us. बोला जैसे ही हम लोग शिप को आगे बढ़ाते, हम लोगों ने देखा इतना बड़ा, ऐसा लग रहा था इतना पूरा पूरा सी जो है हमारे साथ आ रहा है. ऐसा लग रहा था पूरा जो सी है वो हमारे साथ बह रहा है. इतना ज़्यादा आगे से सी आ रहा था रोल करते हुए. द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. बोला जिस जो आवाज़ आ रही थी ना विंड्स की, जो वो हवाओं की आवाज़ थी ना, पेनफुल थी कानों के लिए. इतनी पेनफुल थी, टॉलरेबल नहीं थी. इतनी जोर जोर से हवाएं चल रही थी. टू स्लो द बोट डाउन, ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप. अब उन्होंने, जैसे मैंने बताया ना, ये जो जिब होती है ये शायद उसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए होती है, तो यू कैन ड्रॉप इट, वापस से अटैच कर सकते हो उसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए. नाउ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट सो आई कैन टेल यू वेरी वेल, बट दिस इज व्हाट आई न्यू. नाउ हियर उन्होंने क्या किया, बड़ा सा हैवी मूरिंग रोप जो था उन्होंने उसको लैश किया. मूरिंग रोप से क्या होता है कि आपका जो इसका स्पीड है वो कम हो जाता है, बट कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आपको मूरिंग रोप भी दिखा देती हूँ. ये देखो ऐसा होता है. मैं अच्छा सा एक मूरिंग रोप दिखा देती हूँ. ये देखो, दिस इज द मूरिंग रोप. सो दिस इज द मूरिंग रोप हियर. नाउ इस रोप को यूज करके आई थिंक ड्रॉप कर देती हूँ, जिसकी वजह से वो भारीपन की वजह से शिप थोड़ा सा धीरे चलने लगता है. सो या दैट्स माई आइडिया. नाउ माई स्टूडेंट्स जो कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, बट या दैट्स व्हाट इट इज़. नाउ फिर उसके बाद में उन्होंने सारी चीज़ों को डबल लैश किया, सारी चीज़ों को बंद कर दिया. लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल्स उन्होंने ले लिए, लाइफ लाइन्स ले ली, ऑयल स्किन्स ले ली, लाइफ जैकेट्स ले लिए, सारी चीज़ें एकदम रेडी करके वो एकदम रेडी हो गए थे. दे वर ऑल प्रिपेयर्ड कि एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है एंड देयर इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी रियली हॉरेबल. सो दे वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट. सब कुछ उन्होंने पहन पहन के वो एकदम रेडी हो गए थे. ठीक है, तो अभी वो रेडी हो गए इस चीज़ के लिए. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम अबाउट 6 PM. ये 6 PM याद रखोगे बच्चों. और उन्होंने बताया पहला इंडिकेशन जो था इतने बड़े डिजास्टर का, पहला इंडिकेशन 6 बजे आया. विथ एन ओमनियस साइलेंस. तूफान से आने से पहले वाला सन्नाटा. इट वॉज ओमनियस. बहुत एकदम से शांत हो गया था सब कुछ. द विंड ड्रॉप एंड स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. विंड्स तो रुक गई बट स्काई एकदम से डार्क हो गया. देन केम अ ग्रोइंग रोर. तो अब एक ग्रोइंग रोर होने लगा. अनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ शिप. ऐसा था जैसे वो क्लाउड जो है केवल शिप के ऊपर आके रह गया. With horror, I realized it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. फिर उन्होंने देखा, अरे यार ये क्लाउड नहीं है, दिस इज अ वेव. ये वेव है, ऐसी वेव जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं. इट अपीयर्ड
perfectly vertical. This is the ship, and the wave was perfectly vertical. And imagine it was at the top of the ship, like this. Don't you feel it's going to pour its water into the ship? It was that horrifying, guys. It was that horrifying. तो उन्होंने देखा परफेक्टली वर्टिकल था वो, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. बोला ऑलमोस्ट उसकी हाइट सारे वेव्स की ट्वाइस थी. मतलब जितनी भी वेव्स हमने देखी थी उसका दुगना, मान लो आप, दुगना था ये वाले वेव, लिटरली. The roar increased to a thunder. As Stern moved up the face of wave for a moment, I thought we might ride over it. और उन्होंने देखा तो एकदम से थंडर होने लग गया. एकदम हॉरिफाइंग सिचुएशन था. उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी शिप को कैसे जैसे उसमें से निकाल लेंगे. उन्हें लगा कि इट इज़ ईजी एंड ही विल बी एबल, लाइक ही कैन डू इट. वो आराम से उसे वहाँ से निकाल लेंगे. But then a tremendous explosion shook the deck. बट ऐसा हुआ नहीं. इतना जोर से एक एक्सप्लोजन हुआ और डेक, दैट इज शिप का जो लोअर पार्ट होता है, उस पे आके एकदम से इट पम्प्ड. अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. ऐसा लग रहा था सारा पानी वहां पे आ गया था. एवरी वाटर दैट्स देयर, दैट वाज इनसाइड द शिप. माई हेड स्मैश टू इन टू द व्हील. उनका जो सर था वो जाके व्हील पे टकराया. आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. और जैसे ही वो आके यूं टकराए, वो एकदम से उड़ के और शिप के उस पार गिर गए. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. उन्हें लगा अब वो मरने वाले हैं, अब वो नहीं बचेंगे. आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. वो धीरे धीरे बेहोश हो रहे थे और उन्हें काफ़ी पीस महसूस हो रहा था. ही वॉज फीलिंग एज इफ ही इज़ नाउ एट पीस एंड एवरी थिंग विल बी फाइन नाउ. सो अभी एवरी थिंग दैट ही वॉज डूइंग, इट वॉज ऑल इन वेन. ऐसा लग रहा था पता नहीं पूरा शिप जो है, नहीं, पूरा जो पानी है वो शिप में आ गया. ही एक्चुअली वॉज आउट ऑफ द शिप एंड वो ऐसे जाके गिरे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ही कैन नेवर बी बैक अगैन एंड अब वो मरने वाले हैं. उन्हें लिटरली ऐसा लगा. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर. एकदम से उनका हेड बाहर निकला पानी के. A few meters away, wave walker was near, capsizing her mast almost horizontal. थोड़ा सा ऐसे करके देखा आंखें खोल के तो दिखा कि वेव वॉकर वहाँ पे है और एकदम से हॉरिजॉन्टल, एकदम डूबने वाली है. Then a wave hurled up her upright, my lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails, sailed through air into wave walker's main boom. अब एकदम से क्या हुआ, फाइनली वापस से एक वेव आया और वेव ने उसे वापस से ठीक कर दिया. इट वॉज ऑल बैक इन टू इट्स पोजिशन. अब वो कैसे जैसे बेचारे जाके वेव वॉकर में अंदर गए, मतलब कैसे जैसे ही मेड हिज चांसेस टू दी वेव वॉकर्स मेन बूम. मेन बूम इज द मेन एरिया वेयर एवरीथिंग इज देयर, जिससे आप कंट्रोल करते हो बोट को. Subsequent wave tossed me around a deck like a rag doll. और बोला वेव आती कभी मुझे इधर पटक देती, कभी मुझे इधर पटक देती. So waves ऐसी थी. he was all like this. वो बेचारे ऐसे ऐसे जा रहे थे, वो एक जगह हो ही नहीं पाए. My left ribs cracked. उनकी रिब क्रैक हो गई थी. Mouth filled with water, ब्लड. पूरा मुंह एकदम खून से भर गया था. ही हैड ब्रोकन टीथ. लिटरली उनके दांत टूट गए थे. कैसे जैसे उन्होंने व्हील को ढूंढा, वो व्हील के पास गए, उन्होंने पकड़ा उसको एंड ही वाज लाइक ओके ओके, आई एम कंट्रोलिंग दिस. वाटर वाटर एवरीवेयर. उन्होंने जहाँ जहाँ देखा पूरे शिप में पानी पानी हो गया. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. बोला मुझे पता था शिप में नीचे तक पानी चला गया है और शिप डूबने वाली है, बट मैं व्हील को कैसे छोड़ूं? अगर मैं व्हील को छोड़ के वहाँ देखने गया तो शिप वैसे भी डूब जाएगी.
Suddenly the front hatch was thrown open. Mary appeared. एकदम से जो फ्रंट है वो एकदम से खुल गया और मैरी आ गई. We are sinking, she screamed. बोला हम डूब रहे हैं. The decks are smashed. We are full of water. उन्होंने बोला डेक जो है वो एकदम से स्मैश हो गया, पूरी जगह पे पानी पानी हो गया. Take the wheel. उसने बोला कि प्लीज व्हील संभालो, व्हील संभालो. I shouted and I scrambled for the hatch. उन्होंने बोला तुम व्हील संभालो, I will look after it. तो उन्होंने उनको व्हील पकड़ाया and then he went back to the places. वो गए, उन्होंने चेकआउट करने का सोचा कि मुझे चेक करना है कि पानी एक्चुअली कहाँ पहुंच गया है. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. वो बेचारे पंप कर रहे थे, पानी को पंप किए जा रहे थे, मतलब पागलों की जैसे वो पंप कर रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, सब कुछ पानी में चला गया. पानी की वजह से सब पानी में तैर रहा था. क्रॉकरी तैर रही थी, टॉयज तैर रहे थे, सब कुछ पानी में था. I half swam, half crawled into the children's cabin. थोड़ा स्विम करा, थोड़ा क्रॉल किया. He was literally sick. But कैसे जैसे he crawled and he made his way to children's cabin. वो children के cabin में पहुंचे. Are you all right? उन्होंने पूछा क्या तुम लोग सही हो? Yes, they answered from the upper bunk. वो ऊपर अपने बंक में बैठे हुए थे. बोला yes हम सही है. But my head hurts a bit. बोला मेरा थोड़ा सा यहाँ से दुख रहा है पापा. सू ने बोला और जैसे ही उन्होंने देखा शी हैड अ बिग बिग बम्प राइट हियर. यहाँ पे इतना जोर से उसे लगा हुआ था एंड ही वाज लाइक ओ माय गॉड. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स. अभी उनके पास ये टाइम नहीं था कि वो सू को देखे, सू को संभाले. ही हैड टू सेव एवरीबडी देयर. After finding a hammer, screw and canvas, I struggled back on deck. उन्होंने फटाफट उनको जो भी ढूंढना था ही एक्चुअली गैदर्ड एवरीथिंग और वापस से वो डेक की तरफ गए. स्टार बोर्ड खोला. वो सारी जगह से उन्होंने देखा कि सब कुछ एकदम से टूट गया है. उन्होंने कुछ रिपेयर्स करने का सोचा. बोला अगर मैंने रिपेयर नहीं किए तो डेफिनेटली हम लोग आज डूब जाएंगे. तो उन्होंने ये सोचा कि मुझे फटाफट से क्विकली रिपेयर करने हैं सो दैट हम लोग बच जाएं आज. एंड देन ही मेड हिज रिपेयर्स. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. उन्होंने होल्स में कुछ ऐसे भरा ताकि से वो कैसे जैसे मैनेज कर सके सारी चीज़ को एंड कैसे जैसे वो पानी को रोक सके. Some water continued to stream below, but फिर भी कुछ ना कुछ पानी आ ही रहा था. But most of it was now being deflected over the side. But जितना भी पानी था अब थोड़ा पानी दूर था. More problems arose when our hand pump started to block up with debris. और प्रॉब्लम होने लग गई जब उनके हैंड पंप्स जो हैं वो ब्लॉक हो गए. डेब्रिस क्या होता है? डेब्रिस का मतलब होता है टूटी फूटी चीज़ें जो होती हैं. तो टूटी फूटी सारी जितनी चीज़ें थी वो पंप में जा रही थी पानी के साथ में. अब वो पानी का जो पंप है वो हो गया था ब्लॉक. अब पानी का वो पंप ही नहीं चल रहा तो पानी कैसे निकलेगा बाहर. द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड. इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया. नाउ व्हाट शुड दे डू? अब क्या कर रहे हैं? द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली. और पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. पानी बहुत जोर से तेजी से बढ़ रहा है और दे कैन नॉट डू लिटरली एनीथिंग. पंप्स खराब हो गए हैं, कैसे निकाले इतने सारे पानी को. Back on deck, I found two spare hand pumps had been wrenched overboard. जाके ढूंढा तो 2 spare hand pumps उन्हें मिल गए. Along with the forestay sail, the jib, the dinghies and main anchor. उन्हें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली. And then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. फिर उन्हें याद आया कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है पानी निकालने के लिए. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. उन्होंने आउट पाइप से उसे कनेक्ट किया एंड देन ही वॉज वेरी थैंकफुल कि ओ माई गॉड बहुत अच्छा हुआ, कम से कम ये यूज़ आ गया और पानी निकलने लगा है. ऑलराइट,
The night dragged on the endless, bitterly cold routine of pumping, steering, working the radio. पूरी रात पानी को पंप करना, पूरी रात बहुत ठंड की रात थी, जनवरी का महीना था, इतना ठंड, वो भी सदर्न इंडियन ओशन पे. इट वॉज कोल्ड. पूरी रात वो पंप कर रहे थे, व्हील चला रहे थे, रेडियो पे वर्क कर रहे थे कि कोई तो उनकी बात सुनेगा. वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल्स. कुछ रिप्लाई उन्हें नहीं मिल रहा था अपने मे डे कॉल्स का, कोई रिप्लाई नहीं था. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड. बट ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं था. वो कितना भी अथॉरिटीज़ को कॉल कर ले, कोई आंसर नहीं करने वाला था, क्योंकि वो वर्ल्ड के उस कोने में थे, उस कॉर्नर में थे जहाँ कोई जवाब नहीं दे पाता. Sue's head had swollen alarmingly, और उनका जो हेड है वो बहुत ज़ोर से एकदम से सूज गया था वो. Now she showed us deep cut on her arm, और अब उनके आर्म पे एक बड़ा ही डीप कट भी था. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. बोला तुमने हमें बताया क्यों नहीं. बोला मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी, आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो. मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको और ज़्यादा टेंशन में डाल दूँ जब आप हम सबके लिए काम कर रहे हो. एक छोटी सी बच्ची में इतनी ज़्यादा समझदारी थी. एंड शी शोड सच करेज. इतना दर्द उसे हो रहा था बट शी वॉज क्वाइट, और उन्होंने बहुत अच्छे से बड़े पेशेंटली अपने फैमिली का साथ दिया. By morning on January 3rd, really sorry for it, January 3rd को उन्होंने देखा the pumps had the water levels sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. उन्होंने देखा कि January 3rd में थिंग्स थोड़ी फाइन थी, पानी इतना ज़्यादा नहीं था, और वो 2-2 घंटे की रोटेशन में पंप कर सकते थे, क्योंकि एक ही जना इतना पंप तो नहीं कर पाएगा. तो मैंने पंप किया, फिर मैंने रिलैक्स किया, फिर इसने पंप किया, रिलैक्स किया, तो इस तरीके से वो 2-2 घंटे में पंप्स कर रहे थे. But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the near. बट उन्हें पता था कि अभी भी कहीं तो है जो लीक है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, और उन्होंने फाइंड आउट किया तो उन्हें दिखा कि बहुत ट्रमेंडस लीक था टूवर्ड्स द नियर. In fact, there was nothing holding up the whole section of starboard hull except a few cupboards partition. उन्होंने देखा कि पूरा जो बोट का स्टारबोर्ड है वो टूट गया है, और वो टिका हुआ पता है कैसे है, कार्डबोर्ड से. सिर्फ कार्डबोर्ड से वो टिका हुआ था. इट वॉज सो शॉकिंग फॉर हिम. ही वॉज लाइक सिर्फ कार्डबोर्ड से ये टिका हुआ है, अभी तक तो पानी की बाढ़ आ जानी चाहिए थी. We had survived for 15 hours since the wave hit. बोला वेव के हिट करने से अभी तक हमने कुछ 15 घंटे तक सर्वाइव कर लिया था. But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. बट वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो बड़ी ही बैड शेप में थी. वेव वॉकर अब इतना दूर तक उन्हें नहीं ले जा पाएगी. I checked our charts and calculated, and there were two small islands a few hundred kilometers to the east. उन्होंने चार्ट्स देखे और कैलकुलेट किया, और उन्हें कुछ 2 छोटे-छोटे आइलैंड्स देखने को मिले, जिनमें से एक आइलैंड था एल एम्स्टर्डम. एल एम्स्टर्डम जो था वो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था. उनकी ओनली होप थी वो, उन्हें लगा कि ये इकलौती होप है हमारी, इसके अलावा और कुछ हमें नहीं बचा सकता. बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल. बट उनको ऐसा लग रहा था, दे वांटेड टू डू थिंग्स, दे वांटेड टू मूव अहेड, बट वो सेल कर ही नहीं पा रहे थे. वेदर अलाउ नहीं कर रहा था, वेव अलाउ नहीं कर रही थी. आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और उन्हें लगा कि वहाँ तक पहुँचने के भी चांसेस बहुत कम हैं. The great wave had put an auxiliary engine out of action. इतना ज़्यादा वेव था कि इंजन भी खराब हो गया था. On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of waters. बोला 4th जनवरी को 36 आवर्स जो थे हमारे, जिसमें हमने पंप किया था,
अब हमारे पास बस कुछ ही सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर रहा था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग. अब उन्हें केवल जो नया पानी आ रहा था उसी के साथ एडजस्टमेंट करना था. पुराना पानी सारा बाहर पंप हो चुका था. We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. अब वो ऑब्वियसली और कुछ तो कर नहीं सकते थे. ऑस्ट्रेलिया वो पहुंच नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा बोट की हालत ख़राब थी. तो उन्होंने स्टॉर्म जिप को होइस्ट किया वापस से और उन्होंने उस डायरेक्शन में बोट को घुमाया जहां उन्हें लग रहा था कि वो उनको वो दो आइलैंड्स मिल जाएंगे. Mary found some corned beef and cracker biscuits. We ate our first meal in 2 days. मैरी को कहीं से कुछ बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिले थे और 2 दिन में उन्होंने सिर्फ बिस्किट्स खाए थे. बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. ये जो खुशी थी ना, ये कुछ पलों की थी, क्योंकि 4 बजे द ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. ब्लैक क्लाउड और बिल्ड होने लग गए. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स एंड सीज वर गेटिंग हायर. और थोड़ी ही देर में और ज़्यादा बुरी तरीके से सी रोल करने लगा. द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट. वेदर और गिरने लगा. डिटेरियोरेट मतलब और ख़राब होने लगा. थ्रू आउट द नाइट एंड बाई डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. फिर से उनकी सिचुएशन खराब हो गई. वापस से उनकी सिचुएशन वहीं पे आ गई जहाँ पे वो थे. सो January 5 वापस से वो वहीं आ गए जहाँ पे वो थे. January 5 से कोई बदलाव नहीं आया. They were back to the position that was there earlier. When I went in to comfort the children, John asked Daddy, "Are we going to die?" So अभी यहाँ पे बोला कि जब मैं बच्चों को कंफर्ट करने गया तो जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मर जाएंगे? आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. बोला कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, हम लोग रहेंगे. But he went on, "We aren't afraid of dying if we all can be together. You, मम्मी, सू एंड आई." बोला कि कोई बात नहीं डैडी, अगर अगर हम लोग सब साथ में हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है. आप, मैं, मम्मा, सू, हम लोग साथ में हैं तो हम कोई भी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड. एक छोटा बच्चा जब इतनी बड़ी बात बोलता है, ही वाज लाइक कि मेरे पास बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं क्या बोलूँ उसे उस पर्टिकुलर टाइम पे. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग दैट आई हैड. बोला बट जब मैं गया मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मैं जैसे ही बाहर निकला आई वॉज लाइक मुझे इसे फाइट करना है. मेरे पास जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा. बट आई विल फाइट दिस. मैं इसको फाइट करूंगा और मैं बाहर निकलूंगा. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port, hull facing the oncoming waves using the impoverished sea anchor of heavy nylon rope, 222-liter plastic barrels of paraffin. अभी फाइनली उन्होंने एडजस्टमेंट्स किए, कुछ अरेंजमेंट्स किए. नायलॉन रोप वो लेके आए, उन्होंने प्लास्टिक बैरल्स लेके आए वो पैराफिन के. हर एक ट्राई वो करना चाहते थे ताकि वो लीक्स को रोक सके, पानी जो अंदर आ रहा था उसे रोक सके. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. और उस शाम को मैरी, उनकी वाइफ और वो आराम से बैठ गए दोनों हाथ पकड़ के. एज द मोशन ऑफ शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर. कितनी भी कोशिश कर लो और पानी आ रहा था और पानी आ रहा था. सारे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे थे, सारे एफर्ट्स. और अभी उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. एंड दे वर लाइक अब हम गिव अप कर रहे हैं. एंड दे डिसाइडेड कि ठीक है, वी कैन डू एनीथिंग, एटलीस्ट वी कैन बी टुगेदर. We both felt that the end was very near. दोनों को लगने लगा कि अब वो मरने वाली हैं.
But Wave Walker rode out the storm, and by the morning, January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. नाउ बट ऐसा हुआ नहीं. वेव वॉकर कैसे जैसे स्टॉर्म से निकल गए एकदम हीरो की जैसे, और फाइनली उन्होंने अपना सेक्सटेंट निकाला जिसके अंदर वो पूरे कैलकुलेशंस करते हैं, और उन्होंने कैलकुलेशंस किया चार्ट रूम में. उन्होंने विंड स्पीड्स को देखा, चेंजेस ऑफ कोर्स देखा, ड्रिफ्ट देखे, करंट देखे, ताकि वो अपनी रियल पोजीशन को कैलकुलेट कर सके. और बेस्ट कैलकुलेशन जो वो कर पा रहे थे वो ये था कि वो द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. तो उन्होंने जो कैलकुलेशन किया था उससे वो ये फाइंड आउट कर पाए कि वो कहीं 1,50,000 किलोमीटर्स में थे, कुछ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढने के लिए जहाँ पे वो बच सकते थे. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. और जब वो ये सारी सारी चीज़ें सोच रहे थे इतने में सू ने उन्हें ज्वाइन किया. The left side of her head was now very swollen. उनका जो लेफ्ट साइड था बहुत बुरी तरीके से सूज गया था. Her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. But उन्होंने आके उन्हें एक कार्ड दिया जो उन्होंने बनाया था. On the front, she had drawn caricatures of Mary with me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" उन्होंने वहाँ पे कुछ कैरिकेचर्स बनाए थे और बोला ये देखो, ये रहे ममा, ये रहे पापा, ये देखो कितने फ़नी लोग हैं, क्या आपको इनको देख के हंसी आई. और उन्होंने बहुत ज़्यादा वो हंसे. इनसाइड वॉज अ मैसेज, और अंदर कार्ड को खोला तो एक मैसेज था. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you, to let's hope for the best, and let's hope for the best. Somehow we had to make it. कार्ड को देखा तो देखा कि बाहर वो कैरिकेचर्स थे जिनको देख के वो हंसे, और अंदर लिखा हुआ था कि आई लव यू बोथ, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच. आपने बहुत कुछ हमें किया है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. होप करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, हम कैसे जैसे यहाँ से निकल जाएंगे. अगेन एक छोटे बच्चे में इतना डिटर्मिनेशन होता है तो पेरेंट्स को बहुत हिम्मत मिलती है. तो उन्हें बहुत हिम्मत वहाँ पे मिली थी. आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस. उन्होंने खूब सारी अपनी कैलकुलेशंस को चेक किया. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपस. उन्होंने अपना मेन कंपस लूज कर दिया था. आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस. वो अपना एक स्पेयर कंपस यूज़ कर रहे थे जिसमें इतना अच्छा वेरिएशन नहीं आता है. I made an allowance for this and another estimate for influence of westerly currents which flow through this part of Indian Ocean. फिर उन्होंने सारे calculations किए, currents को देखा, and then he realized. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry. तो वो कम से कम 2 बजे के आसपास लैरी के पास गए और उन्होंने बोला 185 डिग्रीज में ले ले टर्न, और बोला कि अगर हम लकी रहे तो हम 5 बजे, अगर हम लकी रहे तो हम 5 बजे आइलैंड पे पहुंच जाएंगे. तो उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस लैरी को दे दिए. Then with a heavy heart I went below and climbed my bunk and amazingly dozed off. अब उन्हें पता था whatever that will happen, I cannot do anything, I did my part. And then वो अपना heavy heart लेके he went back और जाके वो आराम से सो गए. When I woke it was 6 p.m. जब वो उठे 6 बज चुके थे. And growing dark, और अंधेरा होने लगा था. I knew we must have missed the island. और बोला कि मुझे लग रहा था कि हमने आइलैंड ज़रूर मिस कर दिया होगा. We couldn't hope to beat the back into the westerly winds. और हम लोग वापस से westerly winds को बीट करके पीछे नहीं जा सकते थे. It was not a car के पीछे ले लो, टर्न ले लो, नहीं. At that moment a tousled head appeared by my bunk. और उस moment पे एक छोटू सा head आया. Can I have a hug? बोला Can I have a hug? John asked. Sue was right behind him. बोला पापा Can I get a hug? क्या आप मुझे hug करोगे? Sue एकदम पीछे थी. What happened then? Let's see. Why am I getting a hug now? बोला मुझे hug क्यों मिल रहा है अब? Because you're the best daddy in the whole world. क्योंकि आप best daddy हो पूरे world के.
एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड, और बोला पूरे वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। अब उन्हें पता नहीं था बच्चे क्या बोल रहे थे, उन्होंने बोला आज नहीं जॉन, अभी मुझे टेंशन है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। Why? You must be, said Sue in matter of fact voice. You found the island. बोला क्यों, आपको खुश होना चाहिए, आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। What? I shouted. बड़े खुश हो गए। He was like, what? Did I? It's out there in front of us. बोला just सामने है हमारे। And they were like, oh gosh, finally. As big as a battleship. It was as big as a battleship. He was like, oh my god, finally. बहुत बहुत लड़ाई करके यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। I rushed on the deck, gazed with a relief at the stark outline of El Amsterdam. देखा, एकदम गेज किया एल एम्स्टर्डम को, and he was like, oh my gosh, this is the best island ever. It was only a bleak piece of volcanic rock. ये छोटू सा पीस था वोल्केनिक रॉक का, और कोई इतना ब्यूटीफुल नहीं था, छोटा सा वेजिटेशन वहाँ पे था, बट इट वॉज इंडीड द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। बट उनके लिए मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड था, जान बचाई थी उनकी, कितना भी हो कैसा भी हो, बेस्ट आइलैंड था उनके लिए। We anchored offshore in for the night, और उन्होंने कैसे जैसे एंकर किया, like he decided कि ठीक है, he is going to do something about it, he is going to be there. The next morning, all 28 inhabitants of island cheered as they helped us ashore. Next morning वो कैसे जैसे वहाँ पे पहुँचे, and next morning वहाँ पे कुछ 28 inhabitants थे, पूरे आइलैंड पे केवल 28 लोग रहते थे, उन्होंने सबने उन्हें वेलकम किया, उन्हें उतारा। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie and cheerful, optimistic, under the distress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and a 6-year-old boy who was not afraid to die. बोला जैसे ही मैंने अपने पाँव के नीचे ज़मीन को एक्सपीरियंस किया, मुझे थॉट आ रहे थे लैरी के, हर्ब के, कि कितने ऑप्टिमिस्टिक थे वो, किस तरीके से उन्होंने हमारी मदद की थी। मैरी जिसने जो व्हील पे रही और व्हील पे रह के उसने मेरी मदद की, और सबसे ज़्यादा उस 7 साल की बच्ची के लिए जो सिर्फ हमें टेंशन ना हो इस वजह से उसने कुछ नहीं बोला अपनी हेड इंजरी को लेके, और जिस ऐसी इंजरी जिसके लिए बाद में 6 ऑपरेशंस कराने पड़े, और एक 6 साल के बच्चे के लिए जिसको बिल्कुल डर नहीं था मरने का, उसे बिल्कुल डर नहीं था, he was like I will come out of it, and he was all happy if we all, he said we are all happy अगर हम लोग सब साथ में, he was not afraid to die. So that's there guys, and yeah, so that was about the chapter. तो उन लोगों ने फाइनली अब वो आइलैंड तक पहुँचे, एंड ही रियलाइज कि फैमिली अगर साथ में होती है तो सब कुछ हो सकता है। यू नीड सपोर्टर्स इन एवरीथिंग, एंड उनके लिए उनकी फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट था, फैमिली का लिटरली बहुत बड़ा सपोर्ट था। एंड जिस तरीके से उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी रही और जिस तरीके से उन्होंने बैटल किया, डिटर्मिनेशन ने भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर वो हार मान जाते, कैलकुलेशंस नहीं करते, तो शायद वो उसी टाइम पे मर जाते, बट नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने राइट कैलकुलेशंस की, एंड ही डिसाइडेड कि नहीं, आई विल जस्ट सेव माई फैमिली बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एंड ही डिसाइडेड टू सेव हिज फैमिली, एंड येस, दैट्स व्हाट ही डिड, एंड ही डिड इट प्रीटी फाइन। ये था पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में डेट्स, इस चैप्टर में टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से इस चैप्टर को कवर कराने का मैंने पूरा कोशिश किया है। मैं चाहती थी कि एनसीईआरटी से आप आराम से इसे कवर कर लें, इस वजह से एनसीईआरटी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन डाला। स्टार्टिंग में समरी भी है फॉर दोज ऑफ यू जिनको ये पूरा चैप्टर वापस नहीं पढ़ना है और इंग्लिश बोरिंग लगती है, कोई बात नहीं,
आप लास्ट वाला मत देखिएगा, स्टार्टिंग का देख लीजिएगा, उसमें समरी भी आपको मिल जाएगी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स डेफिनेटली आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। आपने लिटरली हमेशा मुझे सपोर्ट किया है एंड यू गाइज आर हियर सपोर्टिंग मी ऑल ओवर अगैन। थैंक यू so much for everything. If you would want to study with me, if you want to work with me, like आप आना चाहते हैं, प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, आइकॉनिक ज्वाइन करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट माय कोड। बहुत ही छोटू सा आसान सा कोड है विच इज़ SDC लाइव, और इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। Now you can take, if you want, you can take a trial subscription for at least a month. आप एक मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विच इज़ 2700 में आपको मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स आप उस पर पढ़ सकते हैं, सारे टीचर्स से पढ़ सकते हैं, हर तरीके का स्ट्रीम अवेलेबल है। उसके साथ साथ आप एक सब्सक्रिप्शन से 2 स्क्रीन्स चला सकते हैं। तो इफ़ यू एंड योर फ्रेंड वांट टू स्प्लिट, यू कैन गो अहेड एंड स्प्लिट ऑल्सो, एंड दैट्स हाउ इट विल ऑल बिकम 50%. So you can do that, guys. That's it. I think I just introduced you to the best platform and the best thing that you can do right now in the pandemic. So yes, you can definitely help us grow and you can grow along with us. Thank you so much. It actually took 1 hour of continuous speaking. अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे ज्वाइन करना मत भूलना अन अकेडमी पे। मेरा प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हर मंडे 5 बजे मैं आपकी डाउट क्लास लेती हूँ। तो बी रेस्ट अश्योर्ड, अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट आया होगा आप वहाँ लेके आ सकते हैं। हर सैटरडे 5 बजे हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे यूट्यूब पे, उसका क्विज होगा अन अकेडमी स्पेशल पे, तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो या दैट्स इट. So thank you so much, guys. That's it. I think I have taken a lot of your time. Thank you so much for giving me your precious time. I will see you guys later. Thank you so much for being there always. I love you guys. Take care. Take care of your family. Take care of your family. Convey my love to your family. Take care of your parents. And yeah, bye bye. Good night. See you later.